रेडी, ताकि हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट करें इफ़ वी आर ऑन द सेम पेज, ताकि लाइक इट्स 10 minutes सिंस वी स्टार्टेड, तो अब हमें जो है वो शुरू करना चाहिए। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू कमेंट रेडी, ताकि इससे मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियरली आ रही है, एंड देन यू गाइस कैन लिसन मी प्रॉपर्ली। तो वी नीड टू स्टार्ट, राइट? परफेक्ट, आई बिलीव आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल, बट कमेंट अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि आप लोग एटलीस्ट okay, great. So I believe we are on same page. So let me present my screen, and then okay, great. So just let me know, क्या मेरी screen visible है? You can see my screen, I believe, perfectly fine. शायद थोड़ा सा आई बिलीव जो लिंक्डइन है इसके ऊपर मे बी थोड़ा सा डिले होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, या मे बी मेरी बोलने के अंदर या वॉइस के अंदर थोड़ा सा लैग है फॉर मी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, तो दे आर गिविंग मी अ सेंस के थोड़ा सा लेट है, बट या okay. I believe you guys can see my screen right now. So this is for first time जिस जब मैं लिंक्डइन के ऊपर लाइव कर रहा हूँ, सो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए इन अ सेंस के मे बी पॉइंट्स आपके लैग कर रहे हो, या क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाए, या मे बी कमेंट्स मैं रीड ना कर पाऊँ। So try to hold on, आपके questions अपने पास रखिएगा, and then just completing this presentation, or maybe just completing my talk, I'll be giving you uh, a complete time to ask your question, and then we will refine up the session, right? So hello everyone, we are going to talk about user psychology and UX design. So today's agenda is basically we will be going through toward the introduction of user psychology, that user psychology kya hoti hai, and then we will be also covering why we need user psychology in like while designing the intuitive design, while designing or while shaping up the UX of any specific product. Then we will be also like going through some techniques that we need while applying the user psychology in UX design, right? And then also I'll be explaining few benefits of applying user psychology in UX design, and then at the end I'll be going through some few question answer, and then we will wrap up our session, right? So problem statement in front of me, like in front of you as a problem statement, I am Sadiq Hussain, a user experience designer working at Cozy Technology with 4 years of experience, right? And related to my background, I like graduated in animal biology, zoology, with basically again linked पैशन के साथ जो है वो लिंक हुआ इन क्रिएटिंग बेसिकली द यूज़र फ्रेंडली डिजिटल एक्सपीरियंस के साथ। द रीज़न वाज के I started basically in zoology, and then zoology के अंदर obviously when we talk about the human, we talk about the animals, we always go with psychology, with behaviors, right? So those are the things, those were the skills जो कि मुझे help कर रही हैं while creating like user experience and then creative UIs for problem solving, right? And mainly I talk about, as this is the era of basically AI. So I'll be talking about, I talk about mainly about AI as well while powering the UX solution, right? सो इस सेशन के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे कुछ फ्रस्ट्रेशंस की, कुछ हैप्पीनेस की, कि आप फ्रस्ट्रेशन यूज़र कहाँ पे काज करती है, कहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आती है, और कहाँ पे हम उसके लिए उस फ्रस्ट्रेशन को हैप्पीनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन दैट हैप्पीनेस कन्वर्ट लाइक
क्रिएट मोर इंगेजमेंट, और वो इंगेजमेंट जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर मोर कन्वर्जन लेके आती है, राइट? So let's have an activity at first. I believe मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी. So there's a question, why do some experience succeed? एक question है. आप लोग obviously सारे लोग जो है वो apps भी use करते हैं, products use करते हैं. So आप लोग हर रोज एक नया experience कर रहे होते हैं, right? So my question is, why do some experience succeed? आप बहुत सारे experience कर रहे होते हैं, so उन experience में से कुछ experience आपको successful नजर आते हैं. Why is it so? या हम इसको और simple कर सकते हैं कि आपके पास जो है कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपकी फेवरेट एप्लीकेशन होती हैं. सो उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए या उन वेबसाइट्स को गो थ्रू करते हुए कुछ चीज़ें जो है वो आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, एंड मे बी कुछ चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बैड फील करवा रही होती हैं, हमें थोड़ी सी बुरी फील करवा रही होती है, राइट? सो आई वांट, लेट्स ब्रेक दिस लाइक साइलेंस, और आई वांट यू गाइस कि आप किसी एक अपनी फेवरेट ऐप की कोई भी जो है वो हैप्पी मोमेंट, यानी आपको वो यूज़ करते हुए क्यों अच्छा लगता है, वो मेंशन करें. एंड देन आल्सो आप उस केस के अंदर आपको कुछ चीज़ बुरी लगती है, सो व्हाट इट इज़, आप जो है वो चीज़ भी एक्सप्लेन करें, राइट? सो जस्ट गो अहेड, टाइप कमेंट कि आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है, और उस ऐप को यूज़ करते हुए, उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए विद विद gives you happiness, and what caused the frustration while using that app. I hope आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी. And I'm just waiting for your comment कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो भी आपकी फेवरेट प्रोडक्ट है उसके हैप्पीनेस की तरफ, या उसका फ्रस्ट्रेशन जो मोमेंट होता है या फ्रस्ट्रेटेड जो मोमेंट होता है उसको जो है वो मेंशन करेंगे इन द कमेंट, राइट? सो गो अहेड प्लीज. Right, I believe you can hear me as well, so I'm just waiting for your comments ताकि आप जो है वो जल्दी से उस चीज़ को मेंशन करें, right? Anyone out there, just go ahead and type. Great. So there's a comment from Zan Fruki. So he's saying that good experience is unnoticeable as it has become part of our behavior, whereas bad experience get noticed pretty instantly. Right? Exactly. There's a point, Zan. Thank you so much for adding. I'll be going through this point as well later on. Experience succeed when it meet our need with the ease. Right. Google Photos memory feature is my favorite because it connects with my emotion. Perfect. Instagram, I love when I see the follows, likes. Obviously, I don't like it because sometimes uh, the videos are too loud. Maybe. Great, Anas. Thank you so much for adding. Also, an amazing point. Anyone else? I just want to see a few frustration as well. Like आप किस प्रोडक्ट को या किसी प्रोडक्ट के किस फीचर्स को यूज करते हुए you faced like somewhere, like you felt frustrated somewhere, ताकि उस चीज़ को जो है वो आगे आने वाले जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के साथ आप लिंक कर सकें, राइट? सो जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर. राइट. सो हमने ये बात की कि बेसिकली कुछ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सक्सीड इस वजह से होते हैं बिकॉज दे एग्जैक्टली मीट द नीड्स ऑफ द यूजर विद ईज, राइट? देयर वाज अ कमेंट बाय समवन दैट experience succeed when it needs to our when they meet to our needs. So that's exactly the point कि आपने जितने भी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया या जितने भी डिजिटल एप्स को आपने यूज़ किया या डिजिटल वेबसाइट्स को यूज़ किया,
और मे बी लाइक आप किसी फिजिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स या वो डिजिटल प्रोडक्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट को, आपकी नेसेसिटीज़ को एंड आपकी लाइक जो उस टाइम पे नीड्स है या पेन पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रहा होता है, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए सक्सेसफुल होता है, राइट। बट इन सम केसेस कुछ लोगों के लिए वो जो प्रोडक्ट है या वो जो फीचर्स है, दैट कुड बी द फ्रस्ट्रेटेड पॉइंट एज वेल। लाइक जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल दे लेते हैं लाइक टिकटॉक्स के एल्गोरिदम की। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द टिकटॉक, तो आप जो आपको डोमिनोज इफेक्ट वहाँ पे नज़र आता है। डोमिनोज इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि वो खुद ब खुद स्वाइप होने का आपको एक जेस्चर जो है वो देता है, या मे बी इन फ्यू केसेस इट लाइक लिंक योर ब्रेन विद दैट एल्गोरिदम के, वो आपके रेलिवेंट जो वीडियोस होती हैं वो आई जा रही होती हैं, एंड देन यू जस्ट कीप स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग, राइट। सो मे बी फॉर द गाय जो कि उस टाइम पे उसको लाइक यूज करते हुए इंटरटेन कर रहा है या उसके हार्मोनल इफेक्ट को वो कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो फीचर्स है वो उसके लिए सक्सेसफुल होगा। बट इन सम केसेस फॉर द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक नीड या स्पेसिफिक रेलिवेंट वीडियो, लेकिन वो उसको नहीं मिल रही, बट वो उस चीज को स्क्रॉल कर रहा है, तो ये उसके लिए फ्रस्ट्रेशन भी काज कर सकता है। सो अगेन द पॉइंट इज के oh, great. So basically, like वो feature at the at what one end is causing happiness to someone, and for and another point, या other side पे वो किसी के लिए जो है वो frustration भी cause कर रहा है. Yeah, thank you so much for adding few more like comments. Instagram story. I feel frustrated due to the unavailability of prop feature. That is the point as well. Samin के वहाँ पे like जो क्राफ्ट का फीचर है वो नहीं है, तो इट देयर इज अ नीड, लेकिन वो नीड आपकी फुलफिल नहीं हो रही, तो इस वजह से आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। Yeah, talking about Snapchat, sometimes it's frustration when people forget with what snap they sent and they got a reply. Exactly, Zen, it happened to me कि I like sent a streak to someone and then उन्होंने उसके ऊपर रिप्लाई किया, एंड देन अब वो दूसरे दिन रिप्लाई में देख रहा था, तो आई फॉरगॉट कि मैंने उससे सेंड क्या किया था, राइट। सो इट कास्ट मी फ्रस्ट्रेशन, बट समहाउ लाइक स्नैपचैट इज हेल्पिंग पीपल्स टू बेसिकली शेयर द मेमोरीज, या फिर वो स्ट्रीक के दौरान अपने आपस में कनेक्टेड रहते हैं। This experience is good, but the way they're showing like handling that experience, maybe it caused somewhere frustration as well, right? Okay, uh, let's move ahead now. Like हम बात करेंगे, I'll be talking about the human experience rather than user experience, right? उसकी रीज़न ये है कि when we talk about specific user, तो हमारी उस प्रोडक्ट को जो यूज़ करने वाले लोग हैं, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो उस टाइम पे उस स्पेसिफिक यूज़र बन जाती है। बट आई वांट टू कवर लाइक दोज फीचर्स या उस पूरी प्रोडक्ट को फॉर ऑल ओवर द ह्यूमैनिटी, जिसके लिए आज हम स्पेशली अब हम स्पेशली एक टर्म भी यूज करते हैं, दैट इज ह्यूमैनिटी सेंटर डिजाइन, राइट, H+CD। सो वो बेसिकली क्या होता है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी के एक्सपीरियंसेस को जो है वो कैटर कर रहा होता है। सो इस एक्सप्लेनेशन के दौरान आई विल बी टारगेटिंग द ह्यूमंस, सो दैट्स व्हाई आई विल बी लाइक सेइंग कि हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की। सो जब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की या फिर यूजर साइकोलॉजी की while building any specific product, तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये आपके सामने आई बिलीव स्लाइड विजिबल होगी। इस स्लाइड्स के ऊपर आपको कुछ एक व्हील स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट की बात है, जिसके अंदर गोल्स की बात है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी एंड प्ले की बात है, देन टास्क एंड प्रोडक्टिविटी की बात है, परसेप्शन की बात है, कॉग्निशंस है, बिहेवियर्स है, इमोशंस है। सो ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ लाइक साइकोलॉजी। जैसे हम बात करते हैं आगे थोड़ी ही देर में कि कॉग्निशन लोड की हम बात करते हैं, या बिहेवियर साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, या इमोशनल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, या मोटिवेशंस की हम बात करते हैं, या परसेप्शन की हम बात करते हैं। सो all these points are the pillar of human psychology। जैसे so supposingly हम बात करते हैं कि if there's a point कि आपको कोई बात समझ नहीं आ रही and it increasing the load on your brain, तो उसकी वजह से आपका जो कॉग्निशन लोड है वो बढ़ता जा रहा है, और उस कॉग्निशन लोड के बढ़ने की वजह से आपका माइंड जो है वो उस चीज़ को
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील करता है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो दैट इज द कग्निशनल साइकोलॉजी। एंड देन इमोशनल साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो अगर लाइक इफ यू समवेयर परफॉर्म वेरी वेल एंड देन आपको कोई उस परफॉर्मेंस की बेस पे एक इमोशनल अप्रिसिएशन देता है, तो उसकी बेस पे आप जो है वो हैप्पीनेस फील करते हैं, तो दैट इज अगेन द इमोशनल साइकोलॉजी। सो सिमिलरली गोज पर मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, तो व्हेन यू वॉच, आजकल वैसे बहुत सारे लोग जो है वो जब से स्टोरीज देखते हैं, तो उसकी बेस पे उनको मोटिवेशन मिलती है, वो मोटिवेशन की बेस पे स्टार्ट तो करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को, बट वो टास्क जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है। सो दैट इज समवेयर द मोटिवेशन, जो कि मोटिवेशन अब लॉन्गर टर्म के लिए है, शॉर्टर टर्म के लिए है, सो दैट डिपेंड्स अगेन द ट्रिगर और मे बी द स्टिमुलस जिसकी बेस पे मोटिवेशन मिल रही है, बट या द मोटिवेशन इज आल्सो अगेन लिंक्ड विद द साइकोलॉजी। सो अब जब हम इस पूरे सेशन के एंड पे जाएंगे, तो आई विल बी टर्निंग दिस होल स्लाइड इनटू द कलरफुल स्लाइड, जिसकी बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन सारी पॉइंट्स को हमने कैसे लिंक किया है टू बिल्ड अ यूजर साइकोलॉजी व्हाइल बिल्डिंग हैप्पी यूएक्स डिजाइन एक्सपीरियंस फॉर द ह्यूमन, राइट। सो हम बात करते हैं कि वाई यूजर साइकोलॉजी, हमें इसको पढ़ना ही क्यों है, या हमें इसके ऊपर बात क्यों करनी है, राइट। सो किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, या किसी भी सर्विस की बात करते हैं, या किसी भी मोबाइल ऐप की बात करते हैं, या वेबसाइट की बात करते हैं, सो उस प्रोडक्ट के या उस सर्विस के अंदर तीन मेन पिलर्स होते हैं। एक आपके यूजर्स होते हैं, एक आपके बायर्स होते हैं, और तीसरे जो है वो आपके कस्टमर्स होते हैं। सो लेट मी गिव यू क्लियर पॉइंट ऑफ कि हम इन तीनों को डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं। बट फर्स्ट आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइस कि आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि यूजर कौन होते हैं, बायर कौन होते हैं, एंड कस्टमर कौन होते हैं, राइट। सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस दैट वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइस के यूजर कौन होता है, बायर कौन होता है, और कस्टमर कौन होता है, राइट। सो गो अहेड एंड टाइप इन द कमेंट what are the key differences among these three, like user, uh, customer, and then buyer. I would love to hear your remarks. Yeah, I believe we are on the same page, and I would love to hear your point of views regarding. Yeah, go ahead. I believe you can hear me properly. So, what are the difference among buyers, customers, and users? Gee, anyone? सो बेसिकली यूजर्स वो होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो सपोजिंगली वी आर राइट नाउ वी आर यूजिंग द लिंक्डइन फॉर दिस सेशन, सो वी आर देयर यूजर्स, राइट। सो बायर कौन होता है? वो बेसिकली वो बंदा या वो यूजर जो कि आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को बाय करता है। सो ही इज द गाय जो कि आपका बायर कहलाता है, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट द कस्टमर, सो कस्टमर वो होता है जो कि एक प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम पे होता है, और उसका आपके बिजनेस के साथ या आपकी सर्विसेज के साथ जो है राइट, जो आपकी सर्विसेज के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाता है, आपका एक बिजनेस के साथ आपके बिजनेस के साथ उसका प्रॉपर रिलेशनशिप बन जाता है, तो वो आपका कस्टमर होता है, राइट। सो द पॉइंट इज आपका कस्टमर जो है वो आपका यूजर भी हो सकता है और आपका बायर भी हो सकता है, राइट। बट जो यूजर होता है वो मे बी आपका कस्टमर ना हो, मे बी वो आपका बायर हो, राइट। एक फ्री फ्री ट्रायल जैसे होते हैं वो आपका यूज करें, आपके सर्विस को बाय किया, एंड देन लेटर ऑन उसने आपके जो प्रीमियम क्वालिटी है उसको बाय नहीं किया, एंड देन वो फ्री ट्रायल के बाद वहां से चला गया। सो वो आपका बायर तो था,
बट आपका कस्टमर नहीं था. So in business, basically we talk about TAM model. TAM model is targeted addressable market, right? So targeted addressable market जो होती है वो आपके कस्टमर होते हैं. कस्टमर्स वो होते हैं जो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज के साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है, और उस रिलेशनशिप की बेस पे वो आपके पोटेंशियल बिजनेस को जो है, आपकी जो जो प्रोडक्ट है या उसके जो राइट, आपका जो सर्विसेज है उसके बेस पे आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करते हैं, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ, लाइक आपके जितने कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर आपके बिजनेसेस को ग्रो करेंगे, राइट. सो टू बिल्ड द बिजनेस वी नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स. और कस्टमर्स हमारा कैसे बिल्ड होगा? इफ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, और हम उनकी नीड्स को या हम उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली कवर कर रहे हैं, राइट. तो अगर आप उनकी नीड्स को, उनके फ्रस्ट्रेशंस को और उनके प्रॉब्लम का सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन जाते हैं, और वो आपका कस्टमर्स जो है वो आपके बिजनेस को जो है वो ग्रोथ करवाते हैं. सो उन कस्टमर्स को समझने के लिए यू नीड टू बी अ गाय जो कि उनकी साइकोलॉजी को समझेगा. अब साइकोलॉजी बेसिकली अगेन वही चीज़ है कि वो आप उस उनका जो पेन पॉइंट है या उनका बिजनेस नीड है उसको समझ, उसके बारे में वो क्या बात करता है, वो फील क्या करता है, वो थिंक क्या करता है, उसके मेंटल मॉडल्स क्या हैं, उसका कॉग्निटिव लोड्स क्या है, उन सबको जब आप इकट्ठा करके समझते हैं तो दैट इज़ द यूज़र साइकोलॉजी. और यूज़र साइकोलॉजी के बेस पे आप उनकी नीड्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो होगा क्या कि वो कस्टमर आपके बिजनेस को जो है वो कन्वर्जन देना शुरू हो जाएंगे. सो इट मीन कि आपका जो यूजर साइकोलॉजी है इसको समझना आपके बिजनेस को ग्रो कर रहा है, आपकी यूजेबिलिटी जो है, आपकी जो डिज़ाइन की गई प्रोडक्ट है उनकी यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, और यूजर की फ्रस्ट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, राइट. एंड देन वो आपके कन्वर्जन रेट को, ऑब्वियसली जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आपके जितने कस्टमर्स ज़्यादा होंगे आपका बिजनेस जो है या आपकी कन्वर्जन जो है वो उतनी ज़्यादा होगी. सो कस्टमर के बढ़ने से आपकी कन्वर्जन रेट जो है वो बढ़ जाती है. एंड देन ऑब्वियसली जब आपकी कन्वर्जन रेट बढ़ती है तो इट मीन आपका जो यूज़र रिटेंशन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है. सो जब भी आप बात करते हैं डिफरेंट, आपने फ्रीलांसर के अंदर सुना होगा कि आप फ्रीलांस के अंदर ऑब्वियसली आपने न्यू कस्टमर को जो है वो तलाश करें, न्यू क्लाइंट्स को तलाश करें, बट आप अपने पुराने जो क्लाइंट्स होते हैं उन क्लाइंट्स को रिटेंशन की तरफ भी ले जाएं ताकि आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करता जाए, राइट. और वो आपके क्लाइंट कब रिटेंशन होंगे? जब आप उनकी साइकोलॉजी को समझ जाएंगे. सो कंसिडरिंग दिस पॉइंट आप ये क्लियर कर सकते हैं कि जब आप यूज़र की नीड को, उनके पेन पॉइंट्स को, उनके फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं, उनके मेंटल लेवल को समझते हैं, तो आप बेसिकली उनकी साइकोलॉजी को समझ रहे होते हैं, और उनकी साइकोलॉजी को समझने की बेस पे आप उनको सोल्यूशन देते हैं, और वो सोल्यूशन उन कस्टमर्स को आपके कन्वर्जन रेट के अंदर बढ़ा के आपके बिजनेस को ग्रोथ करवाता है, राइट. So now think about, like, you are a UX designer and you are going to design a specific product, right? So always think like कि आप वो प्रोडक्ट अपने लिए नहीं बना रहे हैं. ऑब्वियसली हम जब जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के सामने हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं. मे बी वी आर यूजिंग क्रीम, मे बी हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं फॉर फेशियल्स. तो हम ये कर रहे होते हैं कि बाहर जब हम जाएं तो हम लोगों को खूबसूरत लगे, राइट. हमारी जो लुक्स हैं वो अच्छी आनी चाहिए ताकि इन गैदरिंग हम जहाँ पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे हम जो हमारी विजिबिलिटी है, जो हमारी प्रेजेंस है वो अच्छी लगे. सो सिमिलरली जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होंगे तो ऑलवेज थिंक कि आप अपने लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे, बल्कि आप आपके टारगेट ऑडियंस है, आपका एक ग्रुप ऑफ और बंच ऑफ पीपल्स है जिनके सॉल्यूशंस को जो है वो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, एंड यू आर डिजाइनिंग फॉर देम राइट, नॉट फॉर योरसेल्फ. सो बट अगेन एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वी ऑल आर ह्यूमन. जब हम ये कहते हैं कि हम दूसरों के लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे, सॉरी डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने डिज़ाइन नहीं कर रहे, बट अगेन यहाँ पे हम सारे ह्यूमन हैं, हम सारों का दिमाग एक जैसा काम करता है, हम सब लोगों की कुछ एबिलिटीज़ मिलती जुलती हैं, हम सब लोगों की कैपेबिलिटीज़ मिलती जुलती हैं, तो फिर हम अपने आप को बाहर क्यों निकालते हैं?
जैसे इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन सैपियंस, तो ह्यूमन सैपियंस के अंदर हमारा जो लेवल है, हमारे डिज़ाइनर भी खुद होते हैं, हम प्रोडक्ट के कहीं ना कहीं यूजर्स भी होते हैं, हम उस प्रोडक्ट के डेवलपर्स भी होते हैं, रिसर्चर्स भी होते हैं, सो मैनेजर्स भी होते हैं। सो इट मीन कि आप अगर खुद को कंसिडर करेंगे तो यू नीड टू बी इन अ वन रोल, आप डिज़ाइनर हैं जस्ट। बट अगर आप पूरी ह्यूमैनिटी को या ह्यूमन एक्सपीरियंस को कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर वो डिज़ाइनर भी आएंगे, वो डेवलपर्स भी आएंगे, वो यूजर्स भी आएंगे, रिसर्चर्स भी आएंगे, मैनेजर्स भी आएंगे, और इवन आपका एक पोटेंशियल यूजर है जो कि बेसिकली उस प्रोडक्ट को जो है वो यूज कर रहा होगा, राइट। सो ऑलवेज थिंक एट द लार्जर स्पेक्ट्रम दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, लाइक यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि बेसिकली इस पूरी ह्यूमैनिटी को या ह्यूमंस के प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना जा रहा है, राइट। सो लाइक हमने पहले बात की कि वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब लोगों का दिमाग जो है वो एक जैसा सोच रहे होते हैं, वो काम भी एक जैसा कर रहे होते हैं, हम कुछ कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं या एबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी शेयर कर रहे होते हैं, या हमारे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो लिमिटेशंस भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, राइट। सो इट मीन के हम सेम वे से सेम रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। बट अगर आप इस एड को देखें तो यू सी दैट योर एड इज हेयर। सो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे एक एक ब्रेन के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ डूज चल रहे हैं, कुछ डोंट्स चल रहे हैं, फैमिली टाइम चल रहा है, टीवी टाइम चल रहा है, खाना है, पीना है, सोना है, राइट। बट एक छोटा सा पॉइंट वहाँ पे जाके क्लिक करना है जो कि आपकी प्रोडक्ट का ऐड होगा या आपकी प्रोडक्ट होगी। So basically, being a UX designer, you need to click that area ताकि आपका वो जो ad है या जो छोटा सा point है, आप उस छोटे से point के अंदर जो कुछ problems हैं, जो कुछ needs हैं, जो कुछ issues वहाँ पे चल रहे हैं, you need to solve those problems, right? So उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट while convert like shaping up the user experience design, right? So जब user experience जो design है वो कोई मैजिक नहीं है, it isn't going to be work like a magic। हम आप एक छड़ी से बस जल्दी से जो है वो शेप कर देंगे कि एक ऐसा डिज़ाइन जो कि उस आपके यूज़र के पूरे जितने भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, जितनी भी नीड्स हैं, उन सबको कवर कर लेगा, ऐसा नहीं है, राइट। आपको बेसिकली क्या करना होता है, अपने यूजर के कुछ पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होता है, वो सोचता क्या है, वो बिहेव कैसे करता है, वो चीज़ों को फील कैसे करता है, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना बेसिकली जो है वो यूज़र साइकोलॉजी कहलाता है। और इसकी बेस पे जब आप यूज़र साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं इन योर यूज़र एक्सपीरियंस, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, आप उसकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, आप यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट के सक्सेस रेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, राइट। सो these all are outcomes of user psychology while shaping up the user experience of the product, right? सो मूविंग अहेड, हम थोड़ा सा यूजर साइकोलॉजी को समझेंगे और हम तीन साइकोलॉजी की बात करेंगे। हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करेंगे, हम इमोशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर दो पॉइंट्स मेनली मैं ऐड करूंगा। वन इज मेंटल मॉडल। सो अब जब भी किसी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहे हैं, या कोई आप ऐप बिल्ड कर रहे हैं, या फिर आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द मेंटल मॉडल ऑफ योर यूजर। जैसे अगर आप एक सिंपल, आपको गूगल का जो है वो इंटरफेस नज़र आ रहा है, जो कि इसकी सर्च इंटरफेस है, जहाँ से आप गूगल को शुरू करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कुछ आइकन्स यूज़ किए हुए हैं। जैसे अगर आप सर्च का आइकन देख लें, या फिर आप जो माइक है उसका आइकन देख लें, या फिर आप कैमरा का आइकन देख लें, तो आपका जो भी यूज़र होगा वो हमेशा यही परसीव करेगा कि सर्च का जो आइकन है, इट यूजुअली यूज फॉर सर्च पर्पसेस, राइट। माइक का आइकन जो है वो हमेशा उसके मेंटल को इफेक्ट करेगा कि दैट माइक ऑप्शन ऑलवेज गिव हिम बेसिकली अ पॉइंट कि वो वॉइस के साथ जो है वो चीज़ों को सर्च कर सकता है। एंड देन सेम गोज फॉर द कैमरा। इससे क्या परसीव होता है कि वो आप जो पिक्चर्स हैं या सर्च या इमेज है उसके फीचर को यूज़ करके आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, राइट। सो ट्राई टू यूज़ द मेंटल मॉडल्स। यूज़र के माइंड के अंदर हमेशा से
एक पॉइंट बिल्ड हो चुका होता है, कुछ यूनिवर्सल रूल्स बिल्ड हो चुके होते हैं। सो जब आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बढ़ेगा। एंड देन आपकी जो मेंटल मॉडल साइकोलॉजी है या कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट पिलर होता है वो भी कवर होगा। सेकंड इज कॉग्निटिव लोड। अब कॉग्निटिव लोड क्या होता है? अब कॉग्निटिव लोड इज बेसिकली द डिसीजन पार्ट। आप यूजर को जितना इंट्यूटिव और सिंपल टू यूज इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे और उसकी मेंटल एफर्ट को कम करेंगे, ताकि मेंटल एफर्ट को कम करके यूजर एक टास्क को या एक जर्नी को या एक इंट्रैक्शन को कंप्लीटली और क्विकली उसको परफॉर्म कर ले, तो उसका कॉग्निटिव लोड बढ़े, सॉरी, कम होगा, राइट। सो आपका जितना कॉग्निटिव लोड कम होगा उसकी बेस पे आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। So while building up or while thinking up an idea या while brainstorming your idea, you need to keep in mind कि आपने हमेशा अपने जो यूज़र है उसके मेंटल मॉडल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है, और दूसरा उसके कॉग्निटिव लोड को कम से कम करना है, राइट। अब आपको ये गूगल का इंटरफेस नज़र आ रहा है। जब भी आप गूगल के इंटरफेस के ऊपर जाते हैं तो आपकी मेंटल एफर्ट्स कम होती हैं। आपको डायरेक्टली एक सर्च बार मिल जाती है जिसका मकसद ये होता है कि आप जस्ट यहाँ पे टाइप करें अपनी क्यूरी एंड यू विल गेट क्विकली द रिजल्ट्स। और इसी तरह आपके मेंटल मॉडल्स भी इसके साथ लिंक हो रहे होते हैं कि आप वॉइस सर्च कर सकते हैं। दैट माई आइकन इज डिपिक्टिंग दैट दिस इज द वॉइस सर्च। आप सर्च आइकन को देख के डायरेक्टली जो है वहाँ पे आप सर्च की तरफ जा सकते हैं, राइट। एंड देन ऑब्वियसली द कैमरा आइकन जो कि आपको ये क्लियर आइडिया दे रहा है कि यू कैन सर्च वेयर इमेज एज वेल, राइट। सो दिस इज द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यू नीड टू गो थ्रू द पॉइंट्स कि आप अपने यूजर की कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अपने माइंड के अंदर रखें व्हाइल शेपिंग अप द यूजर एक्सपीरियंस, राइट। देन वी हैव द बिहेवियरल साइकोलॉजी। जब जब आप ऑब्वियसली यूजर एक्सपीरियंस को बिल्ड कर रहे होते हैं या यूजर साइकोलॉजी को कंसिडर कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो दूसरा पॉइंट आता है दैट इज द बिहेवियर। अब बिहेवियर बेसिकली क्या होता है? बिहेवियर अगेन एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा ट्रिगर है जो कि आप किसी भी इंटरफेस के साथ आपको इंटरेक्ट करते हुए आप उसको फील करते हैं, राइट। जैसे आपको ये फर्स्ट वन फेसबुक का जो फ्रंट पेज है, जो होम पेज है वो नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये इस आपकी बिहेवियर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है, राइट। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि फेसबुक का जो होम पेज है वो कैसे आपकी बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन किया गया है। एंड सेकंड वन मैंने बात की है बिहेवियर साइकोलॉजी के अंदर आपके कुछ हैबिट्स बन जाते हैं, आपके कुछ रूटीन्स बन जाते हैं। जैसे आपको साथ में एक स्नैपचैट का जो होम स्क्रीन है वो नज़र आ रहा है। स्नैपचैट हमेशा आपको कैमरा की स्क्रीन के साथ ओपन क्यों करवाता है, राइट। बेसिकली तो ये होना चाहिए था कि वो आपको आपको जो है बेसिकली एक ऐसी चैट वाली स्क्रीन ओपन करवाता जहाँ पे आप अपने पीयर के साथ, अपने दोस्तों के साथ या जिनके साथ आपकी स्ट्रीक्स चल रही हैं, आप डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। बट उससे पहले ये आपको एक एक कैमरा की स्क्रीन पे, डिफॉल्ट स्क्रीन पे ले जाता है। व्हाट इज द लॉजिक? सो एनीवन जो ये एक्सप्लेन कर सके कि फेसबुक का जो फ्रंट पेज है उसके अंदर हमारा बिहेवियर पैटर्न कैसे इन्वॉल्व है, और जो स्नैपचैट है वो बेसिकली कैमरा डिफॉल्ट स्क्रीन के साथ क्यों ओपन होता है? एनीवन, आर वी ऑन सेम पेज? जस्ट लेट मी नो प्लीज, ताकि हम आगे जो है वो इसके साथ चलते जाएं, राइट। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Just going through your few comments. Great. I believe we are on the same page. You guys can hear me properly as well, right? मैंने बात की बेसिकली फेसबुक के एल्गोरिदम की या फेसबुक के फ्रंट पेज की।
सो हमारा माइंड का ये या हमारी साइकोलॉजी का एक ट्रिगर है या एक इफेक्ट है कि वी ऑलवेज वांट टू फाइंड आउट द न्यू इंफॉर्मेशन, राइट, जो कि हमारी नीड के साथ या हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ लिंक कर रही हो। तो फेसबुक का एल्गोरिदम एक एक बेसिकली इन्फिनाइट स्क्रॉल इस वजह से देता है ताकि आप जो है वो क्विकली उसको स्क्रॉल करते जाएं, आप इंगेज रहें और आप एक नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए लगे रहें ताकि आप उसको स्क्रॉल करते रहें। सो हमारा ये ह्यूमन बिहेवियर है कि वी ऑलवेज वांट कि हमें नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाए जो कि हमारे लाइक ट्रिगर हमें करे या हमारे मेंटल मॉडल के साथ लिंक हो, राइट। सो फेसबुक ने इस साइकोलॉजी को अपने होम पेज के साथ जो है वो लिंक कर दिया है ताकि यूज़र क्विकली जो है वो स्क्रॉल करता रहे और स्क्रॉल करके वो जस्ट लाइक इसके साथ इंगेज रहे प्रोडक्ट के साथ और उसका एक्सपीरियंस जो है वो स्मूथली जो है वो रन करता रहे टू फाइंड आउट द न्यू इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज द बिहेवियर पैटर्न यूज्ड बाय द साइकोलॉजी यूज्ड बाय द फेसबुक while shaping their user experience. While in case of like स्नैपचैट, जो कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि स्नैपचैट जो है वो डिफॉल्ट में हमें कैमरा स्क्रीन के ऊपर क्यों ले जाता है, राइट। सो बेसिकली फेसबुक का कैमरा स्क्रीन सॉरी स्नैपचैट का कैमरा स्क्रीन के ऊपर ले जाने का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन सो जो बेसिकली ह्यूमन नेचर है वो हमेशा से ये होती है कि वी वांट टू कैप्चर आवर मेमोरीज, राइट। सो बेसिकली बेसिकली जो ट्रिगर है या जो हैबिट्स है स्नैपचैट के केस के अंदर वो आपकी ये है या हमारे रूटीन जो है वो ये है ताकि हम किसी भी मेमोरी को कैप्चर कर सकें और फिर उस क्विकली कैप्चर करने के बाद वी कैन सेंड द स्ट्रीट टू आर लाइक those people जिनको हम बेसिकली शेयर करना चाहते हैं और मे बी टू सेव दैट मेमोरी इन आर बेसिकली फोल्डर और इन आर गैलरी या जो भी हो। सो दैट इज बेसिकली द साइकोलॉजी जो कि स्नैपचैट जो है वो यूटिलाइज कर रहा है टू बेसिकली टू इनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ इट्स यूजर। वो हैबिट्स को या रूटीन्स को बिल्ड करता है टू कैप्चर क्विकली हमारा माइंड जो है वो जिस तरफ जाता है ताकि हम उस चीज़ को मेमोरी को कैप्चर कर सकें, राइट। Create some points because that's the main focus use case of Snapchat, something as the first and foremost flow of the app and scan with the chat and stuff, right? So there was a question कि mental models क्या होते हैं। mental model basically या user mental model basically वो points होते हैं जो कि आप बेसिकली आपके माइंड के साथ लिंक होते हैं या यूनिवर्सली आप जो है आपके माइंड के साथ फिक्स हो चुके होते हैं कि जैसे आप एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कैमरे की जब बात करते हैं तो आपका मेंटल मॉडल है कि कैमरा दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो वो पिक्चर्स के लिए यूज़ होगा या फिर वो वीडियो के लिए यूज़ होगा, राइट। सो दीज आर द मेंटल मॉडल्स या यूनिवर्सल रूल जो कि आपके माइंड को या आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं फिक्स हो चुके होते हैं टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक एक्शन। सो दोज आर द मेंटल मॉडल्स, राइट। राइट। सो थर्ड वन इज इमोशनल साइकोलॉजी। जैसे हमने बात की पहले कि आपकी बिहेवियर साइकोलॉजी किस तरह से इफेक्ट करती है या फिर आपकी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो डिज़ाइन के अंदर किस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए या वो आपके यूज़र को कैसे ट्रिगर करती है। सो द नेक्स्ट एजेंडा इज इमोशनल साइकोलॉजी। सो इमोशनल साइकोलॉजी के अंदर आप दो चीज़ें जो है वो लिंक करते हैं और वो बेसिकली ये होती हैं कि आप अपने यूज़र के साथ या तो पॉजिटिवली इमोशन जो है वो ट्रिगर करते हैं या फिर नेगेटिव इमोशन जो है वो ट्रिगर करते हैं। सो जब भी आप यूज़र एक्सपीरियंस की बात करते हैं या फिर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो यू ऑलवेज वांट टू ट्रिगर पॉजिटिव इमोशन इन योर यूज़र। जैसे इमोशनल ट्रिगर के अंदर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। सो इंस्टाग्राम के अंदर बेसिकली आपको जो लाइक है वो हर्ट की फॉर्म में नज़र आता है। वो आपको नज़र आता है कि जैसे आपको किसी की पिक्चर लाइक करनी है, किसी की रील लाइक करनी है, या फिर आपको टिकटॉक के अंदर सेम जो है वो हार्ट का लाइक नज़र आता है और फिर वो हार्ट जैसे ही आप लाइक करते हैं तो वो फिल हो जाता है एक रेड कलर के अंदर या जो कि फिल करके रेड कलर आपका जो है वो वहाँ पे नज़र आता है और एक बड़ा सा इंट्रैक्शन जो है वो नज़र आता है या बड़ा सा एनिमेशन नज़र आता है। सो द रीज़न इज
जो इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है वो बेसिकली इस माइक्रो एनिमेशन को इस तरह से यूज क्यों कर रहे हैं, राइट? सो इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि आप जब भी किसी को हर्ट को लिंक करते हैं तो हर्ट आपकी जो लव का इमोशनल ट्रिगर है उसको इवोक करता है। तो आपकी जो पॉजिटिव इमोशन है बेसिकली वो उस हर्ट की फीलिंग के अंदर नजर आती है। सो दैट इज द इमोशनल ट्रिगर जो कि आप जब भी लिंक्डइन के सॉरी इंस्टाग्राम को फ्लो कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आप किसी को लाइक जो है वो हर्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो इट ऑलवेज इवोक द पॉजिटिव इमोशन। और इस पॉजिटिव इमोशन की वजह से आपकी जो लिंक है बिटवीन द क्रिएटर या बिटवीन द ओनर ऑफ द पिक्चर्स और मे बी द अकाउंट होल्डर और आप जो उसके यूजर हैं या जो आपके उसके फॉलोअर्स हैं, तो इससे क्या होता है कि एक बॉन्डिंग या एक लिंक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके अंदर इंगेजमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, अगेन आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सो the company or maybe the product again is using the emotional trigger या emotional psychology to link basically or increase the engagement or the retention of their user, right? सो मूविंग अहेड, जो इमोशनल साइकोलॉजी के अंदर दूसरा जो मेन पॉइंट होता है दैट इज द ट्रस्ट और मे बी दैट इज द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा, या फिर आप यूजर की क्रेडिबिलिटी को किस तरह से बढ़ा रहे होते हैं। सो आप बेसिकली ट्रस्ट को बिल्ड किस तरह से करते हैं, आप जब भी कोई डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप डिजाइन के अंदर सोशल प्रूफ ऐड करते हैं, आप वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स ऐड करते हैं, आपको ये कहा जाता है कि आप क्लियर पॉइंट्स जो है वो क्या कहते हैं क्लियर CTAs जो है वो दें, या फिर आप बेसिकली कुछ क्लियर प्राइवेसी पॉलिसीज या टर्म एंड कंडीशन जो है वो लिखें। सो इनके लिखने के या इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का बेसिक मकसद क्या होता है, राइट? सो ऑब्वियसली बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर यू ऑलवेज नो कि आप जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे होते हैं, या फिर आप सिक्योरिटी बिल्ड करना चाह रहे होते हैं, या फिर आप यूजर को ये फील करवाना चाह रहे होते हैं कि उसका डाटा जो है वो सेफ है, या वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर कि बाकी लोग भी जो है उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज बेसिकली द इमोशनल साइकोलॉजी जो कि अगेन आपकी बिल्ड होती है बाय बिल्डिंग द प्रोडक्ट, राइट? सो अब अगर किसी इस वेबसाइट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको एक ई कॉमर्स की जो वेबसाइट नजर आ रही है, और इस ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर आपको नीचे कुछ 3 तरह से जो है क्रेडेंशियल नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर ये आपको बताया गया है कि जी आप ऑथराइज्ड कर सकते हैं रिटेलर के साथ, या मे बी आपकी एक्सटेंडेबल आपकी वारंटी है, या उसके साथ साथ जो है वो आपको गारंटी जो है वो इस वॉच की दी जा रही है। तो आपका इस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है, एंड नाउ यू वुड लव टू बाय दिस प्रोडक्ट, और जिसकी बेस पे आप इस प्रोडक्ट को जो है वो बाय करेंगे, और आपकी अगेन आपको बेसिकली ट्रिगर किया गया है by using the emotional psychology to build your trust on that product, right? So that's the scenario, same scenario जहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, जहाँ पे बेसिकली हम इमोशनल साइकोलॉजी को लिंक करते हैं टू इंगेज टू क्रिएट द बेटर यूजर एक्सपीरियंस व्हाइल लाइक कवरिंग देयर नीड्स और देयर पेन पॉइंट्स, राइट? सो अब हम बात करेंगे बेसिकली ये जितने भी हमने कॉग्निशनल साइकोलॉजी को पढ़ा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गई, बिहेवियर साइकोलॉजी हो गई, या इमोशनल साइकोलॉजी हो गई, इनको बेसिकली हम यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन के अंदर या फिर आप डिज़ाइन को बनाते हुए इनको कैसे समझें और इनको बेसिकली कैसे जो है वो आप यूज़ करें, राइट? सो दैट इज़ द पॉइंट। सो बिफोर दैट आई वुड लव टू गिव द आंसर जो कि आप लोगों ने पूछे हैं, मे बी उसकी बेस पे, एंड देन लेटर ऑन जो है वो हम आगे फर्दर मूव करते हैं, राइट? ग्रेट, आर वी ऑन द सेम पेज? जस्ट रेस्पॉन्स मी कि क्या हम जो है वो वी आर ऑन सेम पेज, राइट? So basically, there's a comment right from Zan. Zan ये कह रहे हैं Snap lands its user on camera feed because it's the main focus or use case for Snapchat. Sending snaps is the first and foremost flow. Zan, basically sending snap is the secondary option. जो obviously आप streaks जो है वो send करना चाहते हैं या streaks share करना चाहते हैं, बट द फर्स्ट एजेंडा जो कि डिफॉल्ट आपको कैमरा के ऊपर लेके आता है, उसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप अपनी जो मेमोरी है या जो चीज़ आप कैप्चर करना चाहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है हमेशा से
या ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप क्विकली किसी भी मेमोरी को कैप्चर करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली आपको कैमरा के ऊपर इसलिए ले आता है ताकि आप डायरेक्टली विदिन लाइक योर टाइम पीरियड आप क्विकली उसको कैप्चर कर सकें. सो दैट इज द साइकोलॉजी जो कि लिंक है बिटवीन द स्नैपचैट एंड देन द फ्रंट कैमरा, राइट? Snapchats open automatically to take a picture. The whole point of Snapchat is to take snaps and send them to someone else to make it. I believe, yeah, I believe I already gave the answer. Is point का, right? Okay, so these were the two questions जो कि discuss हो चुके हैं, and I believe मैंने इनका आंसर already कर दिया है. So great. There's another point कि TikTok should have a button for dislike as well. देखो, ऑब्वियसली डिसलाइक जो है वो होना ज़रूरी होता है टू इम्प्रूव द फीडबैक और उस टू गेन द फीडबैक, और उस फीडबैक के ऊपर आप जो है वो राइट, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है उस फीडबैक की बेस पे जो है हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे आप बात करते हैं बेसिकली लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन के ऊपर आप हमेशा से ये देखते हैं किसी भी आप अपनी जो एंगेजमेंट है उसके थ्रू जा रहे हैं, या उस एंगेजमेंट के अंदर आप ये देख लेंगे कि लोगों ने आपके साथ एंगेज किया, तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था. सेम गोज फॉर फेसबुक. आप फेसबुक के किसी भी हेल्प जो उनकी हेल्प की बेसिकली कम्युनिटी है या उनका जो फोरम है, आप वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब भी आप एक आर्टिकल को रीड करते हैं तो उसके एंड पे वो आपसे पूछता है वाज दैट आर्टिकल वाज हेल्पफुल और नॉट, राइट? तो अगर आप नॉट करते हैं तो उसके बेस पे वो आपसे आपका फीडबैक मांगते हैं. सो ये चीज़ जो होती है आपकी साइकोलॉजी को अगेन लिंक करती है टूवर्ड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, राइट? सो आई बिलीव we are good to go on this page. हम सेम पेज पे हैं. सो लेट्स मूव अहेड. और अब जो हम बात करेंगे वो ये समझेंगे कि हम यूज़र साइकोलॉजी को, जो हमने साइकोलॉजी को कंसिडर किया है कि उसकी यूज़र साइकोलॉजी की 3 टाइप्स हमने कंसिडर की हैं, उनको हम अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, राइट? सो पहला जो तरीका है या द फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज यूज़र रिसर्च. आप जब भी किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने लगेंगे, किसी प्रोडक्ट का आइडिया को शेप अप करने लगेंगे, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगेंगे, ऑलवेज ट्राई टू डू द यूज़र रिसर्च. और यूज़र रिसर्च जो है वो आपकी ऑब्वियसली आप उसके अंदर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, आप सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ जो है वो भी कर सकते हैं. आप इंटरव्यूज़ की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये तो एक कॉमन सी बात है. आप मॉडरेटेड इंटरव्यू करते हैं, अनमॉडरेटेड इंटरव्यू करते हैं, या कहीं पे भी जाके आप लोगों से जो है वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर या उनके पेन पॉइंट्स को, उनकी मोटिवेशंस को, उनके प्रेफरेंसेस को जो है वो उनसे डिस्कस करते हैं, और आप उनसे जो है वो क्वालिटेटिव डाटा जो है वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, राइट? तो ये तो इंटरव्यूज़ हो गए. अब हम सर्विस की बात कर लें तो सर्विस जो है वो आपको कॉमनली फेसबुक के अंदर भी नज़र आ जाते हैं, या मे बी आपको गूगल सर्विस भी नज़र आ जाते हैं. सो दो सर्विस, आप उन सर्विस के अंदर आपको प्रोडक्ट की जो है वो कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, राइट? कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगती है, कौन कौन से फीचर्स जो है वो आपको हेल्पफुल लगता है. सो बेस्ड ऑन दोज प्रोडक्ट्स के सर्विस की बेस पे वो आपकी उस प्रोडक्ट को जो है वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं. तो दीज आर द की पॉइंट्स आर मे बी द पार्ट्स ऑफ यूजर रिसर्च. सो अगला जो पॉइंट है दैट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी. सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर आई जस्ट वांट टू कोट अ यूज केस ऑफ एयरबीएनबी. आप लोगों को ये डिज़ाइन एक छोटा सा जो है वो नज़र आ रहा है, दैट इज़ एयरबीएनबी. एंड आई बिलीव आप लोगों ने एयरबीएनबी के बारे में सुना होगा कि there was a huge decline in their ROI, return on investment, obviously जो है वो बहुत डिक्रीज होता जा रहा था. एंड देन probably इनकी बिजनेस की जो ग्रोथ है somewhere about 5% के ऊपर जो है वो आ चुकी थी. सो दे लाइक सेट डाउन, उन्होंने अपने यूज़र के बिहेवियर को समझा, उन्होंने उनके चैलेंजेस को समझा. सो दे बेसिकली डिड द ऑब्जर्वेशनल स्टडी. उन्होंने बेसिकली ऑब्जर्व किया कि उनके यूज़र जो है वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उनके यूज़र जो है उनकी कॉग्निशनल लोड जो है वो बढ़ रहा है, या मे बी उनके जो यूजर्स हैं वो उनके कस्टमर के अंदर कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे. सो दे फाउंड के उनकी जो प्रोडक्ट की
इमेजेस लगी होती हैं, उनकी इमेजेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। आप इसके ऊपर पूरी केस स्टडी जो है वो पढ़ सकते हैं। सो दैट केस स्टडी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एयरबीएनबी ने अपना जो आरओआई है वो 5% से 47% तक जो है वो कैसे लाया था। सो ओनली पॉइंट वो ये था कि उन्होंने अपने यूजर रिसर्च के थ्रू ऑब्जर्वेशनल स्टडी की, और उस ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बेस पे उन्होंने अपने जो यूजर्स हैं उनके जो बेसिकली थॉट्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है, उसको समझा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज दे कन्वर्टेड दोज कस्टमर इनटू देयर पोटेंशियल यूजर। देन बेसिकली आप अपने यूजर साइकोलॉजी को बाय क्रिएटिंग पर्सोनास या क्रिएटिंग एम्पैथी मैप जो है वो आप अपने कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टमर्स के अंदर। जैसे आपको ये 3 पर्सोनास बेसिकली नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर आपको बोल्ड फॉर्म में नजर आ रहा है, द रोड वॉरियर्स, द डिटेक्टिव एंड द नेटवर्कर। सो दीज आर द 3 पर्सोनास बेसिकली जो कि मैंने स्लैक के यूज किए हैं। सो स्लैक बेसिकली क्या करता है, अपने कस्टमर्स का जो अपने यूजर्स हैं उनके पर्सोनास बनाते हैं एट देयर एंड, और वो क्या करते हैं, वो उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि रोड वॉरियर्स होते हैं, जो डिटेक्टिव्स होते हैं, और जो नेटवर्कर होते हैं। सो रोड वॉरियर्स के बारे में वो ये बात करते हैं कि बेसिकली वो उनके यूजर्स हैं जो कि 22% हैं, जो कि बेसिकली उस प्रोडक्ट को जो है वो आते हैं, यूज़ करते हैं, दे जॉइन द कम्युनिटीज में दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट दे आर 22%, राइट। देन दे हैव डिटेक्टिव जो कि 30% के साथ जो है वो मूव कर रहे होते हैं, एंड देन दे आर नेटवर्कर जो कि 22% के साथ जो है वो लिंक कर रहे होते हैं। तो उनकी जो बेसिकली टोटल इंगेजमेंट्स है, स्लैक की जो इंगेजमेंट है वो इन पर्सोनास के अंदर अपोलोजाइज या इन एम्पैथी मैप के अकॉर्डिंग जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है, और इस डाटा के बेस पे वो यूज़र की साइकोलॉजी को समझते हैं, और उस यूज़र की साइकोलॉजी को समझने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को इटरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर यूजर्स, राइट। सो सिमिलरली when you are shaping up your user psychology या user experience आप किसी भी product का explain कर रहे होते हैं, तो try to create those fictional characters जो कि आपके potential audience होगी, and then think about their needs, think about how they feel, how they think, what they do, and what are their needs, what are their experiences, right? How, like with what are the things जो कि उनको positively trigger कर रही हैं, what are the things जो कि उनके emotions को negatively trigger कर रही हैं। So these are included in personas and empathy maps. So उनकी बेस पे आप क्या करते हैं, अपने यूजर की साइकोलॉजी को समझते हैं, and then you convert that those users into your potential customers, right? So then obviously आप information architecture की तरफ आते हैं। So always try to basically maintain the hierarchy and the navigation in your product। जैसे Amazon की obviously आप बात करते हैं, आप Amazon के ऊपर कोई भी task perform करने जाते हैं, you always go through the listing of the item, and then आपकी जो clear आपको navigation मिल रही होती है, आपको एक logical hierarchies मिलती हैं। So आप जो भी परचेज करना चाहते हैं, यू जस्ट ट्राई टू ऐड दैट वन इनटू योर कार्ट, और उस कार्ट के अंदर आपको ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यू गो टू द चेकआउट पॉइंट, और चेकआउट पॉइंट के बाद आपने उस चीज़ को बाय कर लिया बाय जस्ट पेइंग द पेमेंट, राइट। So there's a hierarchy, there's a proper smooth navigation while shaping up the user experience, right? So आपका user हमेशा ये माइंड में रखिएगा while shaping up the hierarchy या navigation कि आपका यूजर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, where his mental models are lying। आपका यूजर जब भी आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर आ रहा है या आपके एक प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, तो उसका हमेशा मेंटल मॉडल ये होगा कि वो लिस्टिंग को गो थ्रू करेगा या वो सर्च करेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेन योर एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू द नीड्स। user आता है, he try to search mobile covers, then he adds the mobile cover into the cart, and then he go to the checkout point, and then checkout point से he quickly want to pay, and then try to order his required product, right? So that is the mental model of a user while shaping up or while scrolling any e-commerce website. So being a UX designer, you need to understand that psychology of the mental model, and you need to lower his cognitive load by like your content strategy। आप अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे प्लान करें कि यूजर जो है वो क्विकली वहाँ पे आता है, उस चीज़ को बाय करता है, एंड देन ही क्विकली चेक आउट, एंड देन उसके बाद वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। सो दैट इज द कॉमन सिनेरियो फॉर बेसिकली
राइट. सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स जो कि यूजर को रिक्वायर्ड होते हैं like to perform a specific task, a specific niche journey, right? So you need to apply these techniques or triggers while shaping up the user experience. So then obviously आपकी interaction design की बात आती है. So आप by following few models in interaction design you can also like perform like you can increase the user psychology. You can like use the user psychology in shaping up the user experience. So उसके अंदर आपकी दो चीज़ें आती हैं interaction design के अंदर. One is affordability. Always try to think in a way as a user experience designer कि आपका यूजर जो है क्या इस फीचर को अफोर्ड कर सकता है या नहीं. अफोर्ड करने का मतलब ये होता है कि क्या ये बटन यहाँ पे होना चाहिए या नहीं, या ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है क्या पिक्चर्स है या मे बी आपकी क्रीडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे रिक्वायर है या नहीं है. सो इन फ्यू केसेस वी सी के आप जब किसी भी मोबाइल ऐप का या वेबसाइट का लॉगिन पेज बना रहे हैं, तो उस लॉगिन पेज के ऊपर क्या आपको उसका मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है या नहीं, राइट. सो अगर वो मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, वो सिग्निफिकेंटली उसको जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है यूजर के साथ, आपकी नीड है तो आप वहाँ पे यूज करते हैं. अदरवाइज यू कैन क्विकली रिमूव दैट फीचर और मे बी दैट इनपुट फील्ड. तो यूजर को डायरेक्टली आपने वो चीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो के उसके साथ उसको अफोर्ड कर सके एंड देन वो प्रॉपरली उसको इंटरेक्शनली क्यों जो है वो परफॉर्म कर सके. जैसे आप ऑब्वियसली स्पॉटिफाई आपको नज़र आ रहा है, तो अब जब भी स्पॉटिफाई के ऊपर जाते हैं दे क्विकली प्रोवाइड यू आपका बेसिकली एक लॉगिन का सिनेरियो. आप डायरेक्टली वहाँ पे लॉगिन करें एंड देन जब आप सॉन्ग को जो है वो प्ले करना चाहते हैं तो आपको क्लियरली वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बेसिकली प्ले बटन है, पास बटन है, आपने फॉरवर्ड करना है, आपने बैकवर्ड करना है. सो आपको क्लियरली वहाँ पे जो है वो क्यूज दिए जाते हैं, आपको प्रॉपर्ली इंटरेक्शन के थ्रू गाइड किया जाता है. तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस और मे बी द सिग्निफायर्स या अफोर्डेंस जो कि आप अपने इंटरेक्शन डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड करते हैं, राइट. सो सेम गोज फॉर फीडबैक एंड रिस्पॉन्सेज. आप जैसे हमने बात की है कि आप लिंक्डइन की बात की या हमने टिकटॉक की थोड़ी देर पहले बात की कि टिकटॉक को डिसलाइक का ऑप्शन देना चाहिए या फीडबैक का ऑप्शन देना चाहिए या यूज़र को रिस्पॉन्स देना चाहिए या यूज़र को सेंस ऑफ कंट्रोल देना चाहिए. ये हमेशा प्रोडक्ट के अंदर आपने याद रखना है कि जब आप यूज़र को उस प्रोडक्ट का कंट्रोल दे देते हैं तो इट मीन यूज़र इज़ हैप्पी वाइल यूजिंग आपकी प्रोडक्ट को. आप जैसे आप किसी ऐप को यूज़ करते हैं और आप उस ऐप को यूज़ करते हुए आपने फॉरवर्ड का बटन तो क्लिक कर लिया या आप उसके अंदर फॉरवर्ड तो चले गए, बट आपको बैकवर्ड आने के लिए या आपको उस फीचर को बैक करने के लिए जो है वो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इट मीन कि आपके पास उस प्रोडक्ट का कंट्रोल नहीं है. तो जब आपके पास उस प्रोडक्ट का कंट्रोल नहीं होगा तो इट विल काज यू अ फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके पास क्या होगी, आपकी यूज़र साइकोलॉजी को इफेक्ट करेगी और उसकी वजह से आप जो है क्या करेंगे, उसकी वजह से आपका यूज़र जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और आपका कस्टमर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा. मे बी आपका कस्टमर पहले बायर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और फिर बायर से वो आपके यूज़र के अंदर कन्वर्ट हो जाए एंड देन लेटर ऑन वो आपका यूज़र ही ना रहे तो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के जो है वो चला जाए. सो आपको हमेशा यू नीड टू ट्राई टू इटरेट योर डिज़ाइन ऑन द बेस ऑफ योर फीडबैक या फिर रेस्पॉन्सेज, राइट. सो ओके, तो यहाँ तक हमारे पास कुछ टेक्निक्स थी जो कि हमें यूज़ करनी है, चाहे इंटरेक्शन डिज़ाइन हो, चाहे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हो, या फिर पर्सोना बिल्डिंग हो, एम्पैथी मैपिंग हो, या फिर यूज़र रिसर्च हो, जो कि हमें यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के अंदर हेल्प करती है टू अप्लाई द यूज़र साइकोलॉजी, राइट. ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू शेप अप द यूज़र साइकोलॉजी. सो नाउ मूविंग अहेड, हम थोड़े से कुछ दो पॉइंट्स हमारे बाकी हैं जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है कि बेसिकली वो पॉइंट्स कैसे आपको यूज़र साइकोलॉजी को हेल्प करेंगे टू शेप अप यूज़र एक्सपीरियंस. उससे पहले आई वुड लाइक टू आंसर दोज क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे पूछे गए हैं. आई बिलीव व्हाट इज यूज़र मेंटल, कैन यू प्लीज शेयर लिस्ट. अच्छा, यूज़र मेंटल मॉडल जो है उनका लिस्ट नहीं है, वो बेसिकली ये एक टेक्निक है या एक अंडरस्टैंडिंग है बीइंग अ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर कि आप ये हमेशा से थिंक करते हैं कि आपका यूज़र किसी भी चीज़ को लेके परसीव कैसे करेगा, उसकी परसेप्शन क्या होगी या वो उस चीज़ के साथ बिहेव कैसे करेगा. जैसे मैं आपको
एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी भी शॉप के अंदर जाते हैं, तो आपको शॉप के अंदर जो है वो एक एक जो रिसेप्शनिस्ट है वो नज़र आता है, या मे बी आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिसेप्शनिस्ट नज़र आता है, जहाँ से आप जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद आप जो है वो आपको गाइड कर देता है कि आपको फलां चीज़ वहाँ पे मिलेगी, आपको फलां डॉक्टर वहाँ मिलेगा। सो ये आपका मेंटल मॉडल है, आपका हमेशा से ब्रेन ट्रेन हो चुका है कि आप जब भी ऐसी जगह पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक गाइडर मिल जाएगा या एक रिसेप्शनिस्ट मिल जाएगा जो कि आपको गाइड करेगा, राइट। सो दीज आर द मेंटल मॉडल्स जो कि बेसिकली एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली बिल्ड हो चुके होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन है, हमारे अंदर जो है वो एक मेंटल मॉडल ये बिल्ड हो चुका है कि रात जो है वो बेसिकली रेस्ट के लिए बनाई गई है। सो दैट इज द यूनिवर्सल थिंग। और ये यूनिवर्सल थिंग जो है, या जैसे एक और हम कॉमन एग्जांपल देते हैं कि आप जब भी प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट आप बनाने लगते हैं, तो आपको ये हमेशा से गाइड कर दिया गया है, या एक आपकी परसीव आपके माइंड में हो चुका है कि राइट हैंडेड जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। सो आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने लगते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर आप हमेशा से ये सोचते हैं कि ये आपका जो प्रोडक्ट है ये राइट हैंडेड पर्सन ही यूज़ कर रहा होगा, राइट। दैट इज़ द परसेप्शन जो कि आपने परसीव कर लिया है बाई फॉलोइंग the quantitative data present in the market। आपको वो डाटा कहीं से भी मिल सकता है। सो उस डाटा की बेस पे जो है आपने अपने एक परसेप्शन बिल्ड कर रही है। सो दीज आर यूनिवर्सल रूल्स जो कि बेसिकली मेंटल मॉडल्स कहलाते हैं, राइट। सो मूविंग अहेड, अब कुछ हम टेक्निक्स की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हमें और ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिसेस हैं या गाइडलाइंस हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं टू मेंटेन द यूज़र साइकोलॉजी वाइल शेपिंग अप द बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस। सो उसके अंदर जो पहली बात आती है वो हमेशा कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड आता है। सो अब ऑलवेज ये याद रखिएगा कि व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू शेप अप द बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस, और आप ये चाहते हैं कि आपके यूज़र जो है वो फ्रस्ट्रेट ना हो या उनकी जो फील्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं आप उनको हिट ना करें, तो आपने अपने डिज़ाइन के अंदर इंश्योर करना होता है कंसिस्टेंसी। और वो कंसिस्टेंसी आपके कलर्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, आपके फॉन्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, या फिर आपका डिज़ाइन एलिमेंट जो है, या फिर आपकी जो डिज़ाइन टाइपोग्राफी है, वो सारी की सारी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और यूज़र जो है उन कंसिस्टेंसी की बेस पे उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर सके और उस प्रोडक्ट को इजीली नेविगेट कर सके टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, राइट। सो जैसे हम बात करते हैं एप्पल के, आपको ये एप्पल की वेबसाइट नज़र आ रही है। सो एप्पल हमेशा से क्या करता है, दे ऑलवेज कीप कंसिस्टेंसी वाइल शेपिंग अप एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उनकी। आप जो किसी फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर लें, डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर लें, या उनके डिज़ाइन की बात कर लें, तो आपको डिज़ाइन के अंदर हमेशा से जो है वो कंसिस्टेंसी ही नज़र आएगी, चाहे वो फॉन्ट्स हों, चाहे वो स्पेसिंग्स हो, चाहे वो टाइपोग्राफी हो, चाहे वो कलर्स हो, उन सब के अंदर आपको जो है वो कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। सो उसकी बेस पे आप क्या करते हैं कि जब भी आप इस एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप हमेशा से एक हैप्पीनेस फील करते हैं, आपको लग्जरियस फील्स आती हैं, और आपकी जो साइकोलॉजी है वो लिंक कर रही होती है विद रेलिवेंट टू दैट प्रोडक्ट। दूसरी जो चीज़ होती है वो आपकी एक्सेसिबिलिटी होती है। सो ऑलवेज थिंक कि जब भी प्रोडक्ट बना रहे होंगे, दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लाइक इंक्लूसिव फॉर ऑल काइंड ऑफ द पीपल्स, ऑल काइंड ऑफ द ह्यूमंस जो कि डिसेबल हैं, मे बी उनको विजुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, मे बी उनको ऑडिटरी जो है वो डिसेबिलिटी हो सकती है, मे बी उनके अंदर मोटर इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। सो मोटर इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि उनके न्यूरल इन्फेक्शंस जो है वो हो सकते हैं, कुछ मेंटली रिटार्डेशन जो है वो हो सकते हैं। सो उन सब को बेसिकली आपने कैटर करना होता है, इन सब डिसेबिलिटीज़ को अपने डिज़ाइन के अंदर। सो अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर इन सब को कैटर करते हैं और इसको कंसिडर करते हैं व्हाइल शेपिंग अप द यूजर एक्सपीरियंस, तो आपका डिज़ाइन जो है वो एक्सेसिबल होता है। अब ऑब्वियसली जैसे आपने देखा होगा कि कहीं जगह पे आपको जो है वो अगर पिक्चर लोड नहीं हो रही होती तो उस पिक्चर की जगह पे आपको एक ऑल टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। सो वो ऑल टेक्स्ट क्यों दिया गया होता है, वो इस वजह से दिया गया होता है कि यूज़र फ्रस्ट्रेट ना हो, या यूज़र की जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना हो। बेसिकली यूज़र को जो है वो वहाँ पे एक क्लियर पॉइंट नज़र आ जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होनी थी।
सो इसी तरह आपको कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको जाते हैं तो आपको कीबोर्ड नेविगेशंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको कहीं पे कंट्रास्ट एडजस्टमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है, जहाँ पे आप उनके थीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ आप उनके फॉन्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेनली जो गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाके देखते हैं कि गूगल के प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास कंट्रोल आ जाता है कि आप उनके कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसके अकॉर्डिंगली कलर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप फॉन्ट को बड़ा करके रीड करना चाहते हैं तो आपको एक्सेसिबिलिटी दी जाती है कि आप प्रॉपर्ली उसको डिज़ाइन को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकें। सो दैट इज़ द एक्सेसिबिलिटी जो कि आपकी यूज़र साइकोलॉजी को अगेन बढ़ाती है। देन द लास्ट जो कि हम डिस्कस करेंगे बेसिकली दैट इज़ यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कि आप हमेशा जो है जब भी आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है तो आप अपनी प्रोडक्ट को रेगुलरली टेस्ट करते रहें विद योर रियल टाइम यूज़र, और उन यूज़र के फीडबैक को आप हमेशा कंसिडर करें, ताकि जब आपका यूज़र का फीडबैक कंसिडर्ड होगा, आप यूज़र के प्रॉपर व्यूज़ को वहाँ पे इंक्लूड कर रहे होंगे, तो उसकी बेस पे क्या होगा, आप अपनी प्रोडक्ट को इटरेट करेंगे बेस्ड ऑन दैट फीड, और फिर आप उसको रिफाइन करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूजर नीड, और उसकी बेस पे आपका प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज द यूजेबिलिटी टेस्टिंग। So by performing usability testing, by maintaining the accessibility and maintaining the consistency, आपकी best practices होती हैं to ensure user की psychology को आप link करें to shape up the better user experience। सो हमने शुरू के अंदर ये बेसिकली एक छोटा सा एक स्लाइड देखी थी जिसके ऊपर ये आपको प्रॉपर्ली ब्लैक और जो है वो ग्रे कलर का नज़र आ रहा था, बट यहाँ पे जो है वो आपको एक कलर नज़र आ रहा था। सो जब भी आपने प्रोडक्ट को समझना है, आप अपने यूज़र की साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। आपके यूज़र कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। सिमिलरली उनके गोल्स क्या हैं, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, कौन से एक्शंस होते हैं जो कि उनके ट्रिगर करते हैं, वो अर्जेंसी के फॉर्म में जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। एंड देन आपकी क्रिएटिविटी होती है, यू ऑलवेज वांट टू परफॉर्म, right? You always want to perform with those techniques, with those tasks, with those productivity hacks, जिसकी बेस पे आप यूज़र के परसेप्शंस को, आप उनके इमोशंस को, उनकी मोटिवेशंस को, उनकी कॉग्निशंस को, एंड ये चारों चीज़ें जो है वो लिंक्ड होती हैं अगेन विद द बिहेवियर्स। आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं टू शेप अप द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, एंड देन बाय अंडरस्टैंडिंग द यूज़र साइकोलॉजी, राइट? सो राइट, जहाँ पे भी आप इन चारों पिलर्स को इकट्ठा करेंगे तो इनकी बेस पे आप के उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके पेन पॉइंट्स को जो है वो कैप्चर करेंगे, और इस चीज के लिए आप बिल्ड करना होगा कि यूजर कौन है, कहाँ से है, और व्हाट्स द रेलेवेंसी ऑफ यूजर साइकोलॉजी। जैसे हम बात करते हैं, अगर आप कैरेबियन प्रोडक्ट के, कैरेबियन किसी यूज़र के लिए या मैक्सिकन यूज़र के लिए आप कोई एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि उनको शो कलर जो होते हैं, ये जो वार्म कलर होते हैं, वो हमेशा से इम्पेक्ट करते हैं, वो उनकी साइकोलॉजी को ट्रिगर करते हैं। सो आपने डेमोग्राफिकली देख लिया कि इस एरिया के यूज़र को बेसिकली ये वाले जो कलर्स हैं, ये वाले जो इमोशंस हैं, वो उनके बिहेवियर को ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर या उनकी साइकोलॉजी को कंसिडर करते हुए इनको बेसिकली जो है वो इंक्लूड करेंगे इन योर डिज़ाइन टू शेप अप द यूज़र साइकोलॉजी बेस्ड ऑन दैट जो आपने डाटा इकट्ठा किया है, राइट? सो या दिस इज़ ऑल अबाउट यूज़र साइकोलॉजी। हम यूज़र साइकोलॉजी को किस तरह से इंक्लूड करते हैं, और उस यूज़र साइकोलॉजी को बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है, एंड देन हम अपने यूज़र को कन्वर्ट करते हैं इनटू आवर कस्टमर, एंड देन वी कन्वर्ट दोज कस्टमर इनटू आवर मोर कन्वर्जन, और वो कन्वर्जन जो है वो हमारे लिए बिजनेस लाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग आउट देयर। आई बिलीव कुछ थोड़ा बहुत जो है आपको नई चीज़ें मिली होंगी, यू गाइस लर्न फ्यू थिंग्स, आपको कुछ नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होंगी, एंड देन इट विल हेल्प यू गाइस to grow more as a user experience designer while considering the user psychology। user psychology की बेस पे आप जो है उनको उनकी बेस पे आप यूज़र एक्सपीरियंस को, या बीइंग एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर या बीइंग एज ए यूएक्स डिज़ाइनर, आप अच्छे से जो है वो ब्रेनस्टॉर्म कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर एवरीवन। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, सो ड्रॉप योर क्वेश्चंस, आई विल बी आंसरिंग देम।
Uh, right. So just give me a minute to basically take a glass of water, and then obviously I'll be answering those questions. So yeah, go ahead and uh, ask your questions. Right. Right. So all these techniques are also the principle of UX design. Obviously, Eunice, we are talking about like psychology, considering the psychology shaping up the better user experience. आप जब psychology को understand करेंगे और उसको include करेंगे अपने user experience के techniques के अंदर while designing the product, तो आपका जो product है वो और ज़्यादा improve होगा, right? So these are the techniques जो कि आपको help करती हैं to shape up the better user experience. So looking forward for your questions. अगर आपके questions हैं, so go ahead and ask your questions. Uh, I'll be answering those questions in a very few minutes. Yes, waiting for your questions. अगर आपके questions हैं तो drop your question. Yes, this session is being recorded. अच्छा, session record नहीं हो रहा है. I believe ये recording जो है वो LinkedIn के ऊपर रहती है. So you guys can watch the recording later on. But intentionally मैंने कहीं भी जो है वो record नहीं की है. But I believe जब भी आप live करते हैं तो वो जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑन दैट प्लेटफॉर्म. फेसबुक पे ऑब्वियसली वो पड़ी होती है वीडियो, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ. सो आई डोंट नो कि वो यहाँ पे मौजूद होगा या नहीं, बट आई बिलीव कि वो जो है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा. राइट. एनीवन एल्स जी जिसका कोई क्वेश्चन हो, सो आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. When it comes to designing for everyone, isn't it complex to design for so many intended user? देखिए समीन, मैंने बात की थी कि आप जब भी आप यूज़र को कम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाते हैं या आप ह्यूमंस की तरफ ले जाते हैं, तो मैंने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे. एक था एम्पैथी मैपिंग और एक था पर्सोना. सो जब आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप उनके लिए पर्सोनिफिकेशन कर लेते हैं. पर्सोनिफिकेशन ये होती है कि आप एक फिक्शनल कैरेक्टर या एक फिक्शनल ग्रुप बना लेते हैं. जैसे आप ये कहते हैं कि 18 से लेकर 20 ईयर तक या 24 ईयर तक के जो यूजर्स हैं उनके बिहेवियर या उनकी साइकोलॉजी सिमिलर होती है, राइट. फिर आप 24 से लेकर 30 तक बना लेते हैं कि 30 तक जो लोग होते हैं, जो 6 ईयर होते हैं, ऑलमोस्ट इनकी साइकोलॉजी है जो है वो सेम होती है. देन 30 से आप 40 करते हैं, देन 40 से 50 कर लेते हैं. सो इस तरह से आप अपने यूजर को ग्रुप के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, और उस ग्रुप की बेस पे आप उस ग्रुप के एक पर्सन को या एक फिक्शनल कैरेक्टर को ले लेते हैं कि वो फिक्शनल कैरेक्टर उस पूरे ग्रुप की ट्रेड्स को या उस पूरे ग्रुप की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको जो है वो आप जो है बेसिकली कंसिडर करते हैं एज ए लाइक एक नुमाइंदा. जैसे हम बात करते हैं जब जनरल पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं, तो पॉलिटिकली आपको क्या किया जाता है, जैसे आप एक एरिया के अंदर रह रहे होते हैं, वहाँ पे एक एमपी होता है, वहाँ पे एक एमएनए होता है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है इन 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 हाउस, जहाँ पे बेसिकली वो क्या किया जाता है, आपकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, आपकी नीड्स को डिस्कस किया जाता है, एंड देन वो एक बंदा आपकी सोल्यूशन को लेके आता है. सो सिमिलरली आप अपने डिजाइनिंग के अंदर भी उस ग्रुप को पर्सोनिफाई करते हैं, उसके लिए एक पर्सोना बनाते हैं, और उस पर्सोने के अंदर जो है वो आप उस पूरे ग्रुप के ट्रेड्स को कवर करते हैं. एंड देन इसी तरह आप 30-60 के लिए या मे बी 40-50 तक जो आपने पर्सोना बनाया उनके ट्रेड्स को कंसिडर करते हैं. तो आप पर्सोनिफिकेशन करते जाते हैं, आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते जाते हैं. जैसे मैंने आपको स्लैक की फॉर्म में दिखाया है,
स्लैक बेसिकली अपने यूजर के लिए 3 तरह के जो है वो पर्सोनास बनाता है, जिनमें बेसिकली एक रोड वॉरियर थे, डिटेक्टिव थे, या मे बी नेटवर्कर्स थे। तो वो क्या कर रहे थे, उनकी बेस पे अपने उन जो यूजर्स हैं, जो उनके जो बेसिकली कस्टमर्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। सो सिमिलरली आप भी जब सब पूरी ह्यूमैनिटी को या अपने फोकस ग्रुप के नंबर्स आपके पास बढ़ रहे होते हैं, तो उसकी बेस पे जो है बेसिकली उनको उनकी नीड्स को जो है वो पर्सोनिफाई करके आप उनके लिए डिज़ाइन करते हैं। सो आई होप के इट्स क्लियर राइट नाउ, राइट? So we have another, thank you sir, all the points you deliver very well. I hope यूनेस आपके कुछ points जो है वो clear हो गए होंगे। अगर कोई और requirements हैं या कुछ और आपके problems हैं तो just let me know, I'll be answering those questions. And then we have another question, another comment by Zan. Zan is saying really insightful session, Sadek. I'm hoping it's just the start and we will be seeing a lot more from you. Zan, thank you so much. I really appreciate your participation like you for being here for over an hour almost. अब 1 घंटा हो चुका है। But yeah, I'm looking forward. अगर आपकी presentation जो है वो ये मुझे नज़र आता है कि people, you guys want more, so I'll be trying to bring more and more to share my knowledge as well, and everything I'll be bringing them in the future as well. But yeah, I hope you guys learned right from it, right? Next is what is the mean by term use case? Use case is basically a common term. इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी एक चीज़ को जो है कंसिडर कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक टर्म को, तो वो आपका यूज केस बन जाता है। जैसे हमने बात की थी कि आप गूगल के सर्च के जो पॉइंट है उसके ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाके आप क्विकली सर्च करते हैं एंड देन आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो मिल जाती है। सो दोज आर बेसिकली द यूज केसेस जो कि आप कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, राइट? So this is the use case in a very common or maybe in the very general form, right? But then I would like to add that you cannot always design for everyone. You design for your target audience, potential user, and sometimes extreme user, and this scenario is betrayed. Yes, Sam, you are right. Some here, but अगर आपके number of audience बढ़ती जा रही है, आपकी product की जो जैसे हम सपोज गूगल के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। गूगल जो है वो जब भी यूट्यूब डिज़ाइन किया गया है तो यूट्यूब फॉर किड्स एक सेपरेट है और यूट्यूब फॉर म्यूजिक एक सेपरेट है और एक जनरल यूट्यूब है जो कि इन सारों को एक जगह पे कैटर कर रहा है, इन सारों को एक जगह पे टैकल कर रहा है, राइट? तो जब आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है या आपके नंबर ऑफ पोटेंशियल यूजर बढ़ जाते हैं तो आप उसके लिए पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, राइट? एंड आई बिलीव वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसकी बेस पे जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, राइट? अगर फिर भी कोई डाउट है सो जस्ट गो अहेड, ड्रॉप योर क्वेश्चन एंड आई विल बी आंसरिंग अगेन, राइट? We have a comment from Hamza. Thanks for all the information. Thank you so much, Hamza, for being out there. Thank you for appreciation. I hope it will help you to design the better user experience in coming days, right? Looking forward for more questions if we have. Otherwise, we have to wrap it up. But yeah. Okay, Ji. Such a great session. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Samin, for being out there. I hope it has helped you guys to learn few new things. Great. We have a comment from Faiza Fruit. Such a great session. Hope to have more of these. Thank you so much, Faiza. Thank you for being out there. I hope it has helped you to learn new thing. Can you share a little bit on case studies? Hamza, case studies के ऊपर I'll be going to have another session inshallah very soon, जिसके अंदर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, जिसके अंदर हम बात करेंगे केस स्टडीज़ की, और जिसके अंदर हम कंसिडर करेंगे कि केस स्टडी के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए या फिर हम रिक्रूटर्स को स्पेशली कैसे टारगेट करें।
So I'm planning to have a session एक very soon, very quickly. उसके अंदर एक केस स्टडीज वाला जो है वो इसके ऊपर डिटेल से बात होगी. एंड देन आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग स्पेशल रिक्रूटर एज वेल, जो कि यूएक्स के अंदर रिक्रूटमेंट करते हैं, ताकि हम उनसे भी उनकी इंसाइट्स ले सकें दैट हाउ दे थिंक कि पोर्टफोलियो के अंदर या केस स्टडी के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो शेयर कर सकें, राइट, या उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें. ओके, बट या केस स्टडी के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट और मे बी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. जल्दी जो है आई बी ब्रिंगिंग अ न्यू सेशन. राइट, ग्रेट जी. एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो, ताकि आई नीड टू आंसर दोस. This is enough for tonight. If this is possible, bring new topic on coming weekend. Okay जी. अच्छा, हम एक प्लान कर सकते हैं कि on every weekend I can I'll try my best to go live with all of you, जिसके अंदर हम हर वीकेंड पे एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें. बट फॉर दैट आई नीड अ ट्रिगर. उन ट्रिगर का मतलब ये है कि आप में से कोई भी जो है वो मुझे जस्ट अर्ज करे कि वी वांट इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली जो है वो सेशन चाहते हैं, ताकि उस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैं इन चीज़ों को कंसिडर कर सकूं एंड देन उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, राइट. बट या फॉर दिस वीकेंड आई बिलीव इट्स गुड टू गो. राइट जी. Okay, ji, great. I believe there's no question from anyone at all right now. Thank you. It was a great session. Thank you so much, Tareen. And then Musafir just saying, really insightful session. You have touched so many topics in 1 hour that I truly appreciate. Thank you so much, Musafira. कुछ लोगों के कमेंट्स जो मेरे पास लिंक्डइन सॉरी स्ट्रीम यार्ड पे शो नहीं होते, तो मे बी वो यहाँ पे स्किप हो गए हों. बट या यू कैन ऑलवेज reach out to me on my LinkedIn, on my Facebook, wherever you can. I'm an open book. I'll be there for you guys to answer those questions whenever you need it, right. We can talk about anything at any moment. And then yeah, I'll be bringing a few new topics as well in the coming week, जिसके ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे या डिबेट करेंगे, राइट. That was a nice session. Thank you so much, Sagar. I hope there wasn't be a language barrier at all. आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो समझ आए होंगे. So I hope it has helped you to learn few new points. But yeah, see you guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone. Thank you, Zan, for being out there. See you guys again very soon in another topic, right? Okay, Ji. I believe that's good to go right now. Take care, everyone. See you guys very soon in a new session. It's around like half an hour and a half. So, yeah. See you guys somewhere in the somewhere else uh, in a good topic, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसी नए पॉइंट को, किसी नए एजेंडा को. Till then now, yeah, it's good to go, and Allah Hafiz.